Good morning, everyone. Welcome to the session on note making in the career oriented diploma course organized by the Department of English and IQAC of Sri Binzani City College. Today is the sixth day, and to take it further, we have with us our resource person, Dr. Shraddha Deshpande, who is an assistant professor and the head of the Department of English of Dharampet MP Dev Memorial Science College. She has got a vast teaching experience of 14 years and is also a certified counselor and a life coach. She is going to deliver her lecture on note taking. There was a request from her that all the students should keep their colored pens or pencils or sketch pens, whatever you can get hold of, ready, so that that will be helpful for us in note making. Now, this is the whole course, the diploma course focuses upon writing skills. And so, to take it further, yesterday we saw the dialogue writing, and to take it further, today we have got the note making. So I request on behalf of the Department of English, I request Dr. Shraddha Deshpande ma'am to continue with the session. Thank you so much, ma'am, to join us. Thank you, Pranjali ma'am. I once again thank Srimati Binzani City College and Principal Sujit Mitra sir. Pranjali ma'am, once again, thank you for inviting me. And it is always a wonderful experience for me to share my views. I wouldn't say teach, but then to share my views on certain things. And I always like to interact with students and tell them few things that I think I have in my mind. So this is only one that kind of an experience for me as well. Thank you so much. So I'll start sharing my screen because we will come straight to the point of on the topic note taking. I hope this is visible. Yes, ma'am, it's visible, and we can see you in the corner, topmost right hand corner also, and you're audible also. Please go Okay, ahead. thanks. Yes. So my dear friends, students, very good morning to everyone here and very happy to see you all. And today's topic for you is note taking. And further, I will also share with you how you will be able to make notes. So note taking is the first process, and after that, you the same process can be continued for note making also. So what is the difference between? Let me first share with you what is the difference between note taking and note making. The very first step when you enter in your classroom, when the teacher starts teaching you, there are certain things that you understand. And so when you, I mean, it is very important for you to not only keep it in your mind, but also in your notebook. Why? That I am going to explain you in the coming slides. So note taking is the process that happens in the classroom where the teacher is teaching you a particular topic. Unfortunately, nowadays students don't take notes during the class because many a times it happens that the teacher also tells you that don't take notes, I will provide you notes, or just concentrate on my teaching. So maybe because of these reasons, students usually don't take notes. And in this techno savvy world, in this globalized world, students are not very keen on writing skills. Whereas my this presentation will definitely convince you today why writing is still though it is a very traditional method, but it is why it is so important for you in every aspect of your life. So that is the process during the classroom. That is the note taking. And when you go back home and ponder on the things that the teacher has taught you for your self study, you make notes, and that is note making. So more or less, both are same. In note taking, you have to mug up and improve your speed, vocabulary, and the retention power. However, in note making, you can take your time. You can sit at home, collect all your materials with you, give a particular time
for or duration for the note making process, and you can be very creative also. But let me tell you one thing. If you adopt this habit of note taking, or if you are really practice this note taking method, you can actually take notes with all the material that you have. I mean, what I'm saying is, even with your pen, sketch pens, you can draw at the same speed uh, when you are actually taking notes. You can use different pens, you can draw diagrams, you can categorize it. So even at the note taking step, you can use your creative mind. You only need a lot of practice. So let us start. Why? What is note taking? I've already discussed. Writing by hand is basically note taking. When the lecture is going on, you take down your notes, what you have understood. Very important thing, why writing is important today. It is said by the experts that writing by hand improves your memory. It absolutely improves your memory. Sticking with a pen and paper has some serious benefits. Let me tell you how it is. Researchers have done a lot of work on this, and today I'm going to prove you that definitely taking notes is the best option to retain whatever you have learned till now. Improve your ability to remember things. I'll show you some research results where you will understand that why a person who do not write, or when a person writes, what is the difference between these two when it comes to the retention of memory. याद करने के लिए आपको जो सारी चीजें लगती है वो राइटिंग से बहुत अच्छी तरीके से आ सकती है. We have to coordinate verbal and fine movement system. जब हम राइटिंग करते हैं तब हमको, नोट टेकिंग की बात मैं कर रही हूँ, तो जब हम राइटिंग करते हैं, लेक्चर शुरू है, हमारे टीचर्स हमको कुछ सिखा रहे हैं, दे आर टॉकिंग, देर इज वॉइस, देर इज बॉडी लैंग्वेज, एंड देर इज लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट. तो ये सारी चीजें उसमें होती है. तो जब हम ये सारी चीजें देखते हैं, सुनते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, और फिर जब उसको एक तरीके से हम लिखते हैं, तो ये लिखने का प्रोसेस ये हमको बताता है कि हमको समझ में आया है. इट tells you that yes, you have understood the particular point. When you write, for example, I'll tell you, if the teacher is explaining you a particular topic, and when you write it, some at that particular point you may feel that अरे मुझे ये चीज समझ में नहीं आई है. When you are writing it, you come to know that this particular topic or this particular concept I haven't understood. But it doesn't happen when you're not writing it. You tend to skip those things. जब आपके सिर्फ दिमाग में वो सारी चीजें चल रही है, on the thought process level, you skip that particular thing कि okay ठीक है, मैं मेरे फ्रेंड से पूछ लूंगा, या फिर अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो इट्स ओके, आई कैन लीव दैट कॉन्सेप्ट, और आई विल सेल्फ स्टडी एट द एंड. बट राइटिंग के साथ ऐसा नहीं होता है. जब आप लिखते हो तब आप रुक जाते हो. इन दैट केस यू थिंक दैट नहीं, ये कंसेप्ट मुझे समझना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आई आस्क द टीचर एंड सॉल्व माई क्वेरीज फ्रॉम द टीचर. टू क्रिएट आवर ओन समरीज एंड कॉन्सेप्ट, यू कैन फाइंड दिस डिफरेंस. मैं आज आपको बता रही हूँ, आप ये एक्सपेरिमेंट करना कभी भी. जब आप खुद की समरीज और कॉन्सेप्ट लिखते हो तब आपको ज्यादा अच्छी तरीके से याद रहता है, जब इंस्टेड ऑफ जब आप आपके फ्रेंड्स के या फिर खरीदे हुए नोट्स आप पढ़ाई करते हो. तो ये आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, इस सेमेस्टर के लिए कीजिए, कोई एक पेपर के लिए कीजिए, कोई एक टॉपिक के लिए कीजिए. किसी और के नोट्स आप पढ़ के एग्जाम दीजिए और खुद के नोट्स आप बना के एग्जाम दीजिए. Please take this experiment from my side for any one single concept. कोई भी छोटे कॉन्सेप्ट के लिए भी आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. जब आप खुद समराइज करते हैं, खुद कंसेप्ट आप उसमें से डेवलप करते हैं, एट दैट टाइम इट हैज मोर रिटेंशन पावर.
basically because we can keep pace typing, but we can't. Now what happens, this point regarding आजकल कंप्यूटर्स, मोबाइल और टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी राइटिंग जो स्किल है वो बहुत कम हो चुकी है. बट एंड बिकॉज ऑफ दैट हम बहुत कम लिखते हैं, तो हमारी मेमोरी भी उस तरीके से बहुत कम यूटिलाइज हो रही है, फिर स्टोर हो रहा है, मेमोरी में बहुत कम स्टोर हो रहा है. Because we can keep pace typing, but we can't keep pace with handwriting. It means we have different ways of encoding the information, which in turn leads to richer memory. जिस तरीके से अगर हम टाइपिंग कर रहे हैं, फोटो ले रहे हैं, या फिर एनी टेक्नोलॉजिकल टूल हम यूज कर रहे हैं, तो उसमें हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगता है. अगर हम टाइम टेबल का फोटो ले रहे हैं, तो हमको इट डजंट रियली टेक मच टाइम टू यूज आवर ब्रेन. हमारे ब्रेन का यूज हम बहुत कम कर रहे हैं. इट इज वेरी सिंपल. अगर आप कम ब्रेन यूज करोगे, तो आपको पता है कि आपके कितने सारे लॉसेस हो सकते हैं, क्योंकि everything that we do on this earth after we have taken birth, everything relates to our brain, how we use our brain. जितना आप कम ब्रेन यूटिलाइज करोगे, उतना आपको लॉस है. Now, why take notes? Note taking is important, but why? First thing I told you, it helps in remembering things. It is most important point. Memory. मेमोरी ही नहीं रहेगी तो हम हमारे माँ बाप को याद नहीं कर सकते, हमारे टीचर्स को याद नहीं कर सकते, फ्रेंड्स को याद नहीं कर सकते. ये तो इतनी इंपॉर्टेंट बात है. उसके बाद पढ़ाई आती है, पढ़ाई याद नहीं कर सकते. तो रिमेम्बरिंग थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जामिन जब हम राइट करते हैं, तब जैसे हमने कहा कि बहुत ध्यान देके सुनना पड़ता है लिखने के लिए. सो वी एग्जामिन, वी प्रिपेयर. आपने प्रिपरेशन किया है, नोटपैड लिया है, पेन लिया है, स्केच पेन अगर है, कलर पेन है, आपने प्रिपरेशन किया है, फिजिकली प्रिपरेशन किया है, मेंटली प्रिपरेशन किया है कि हाँ मुझे अलर्ट रहना है क्योंकि मुझे लिखना है. ओके. ऑर्गेनाइजेशन में भी वही चीज आती है कि हमने चीजें अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखी है. उसके बाद रिव्यू करते हैं. सी, जब थॉट प्रोसेस होती है ना, थॉट प्रोसेस तो बहुत हमारी सोच या विचारों को कोई ज्यादा रिव्यू नहीं करता है. बट जब हम लिखते हैं, उस चीज को हम बहुत ज्यादा रिव्यू करते हैं, बार बार उस चीज को देखते हैं, पढ़ते हैं. वी गो बैक टू इट, वी सी कि वो सही तरीके से लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है. तो हम उस पर काफी रिव्यू करते हैं. एंड थिंक, ऑफ कोर्स, व्हेन वी राइट एंड आफ्टर राइटिंग वी रीड इट. तो व्हेन वी रीड वी थिंक अबाउट इट. हमारी पढ़ाई के लिए ये जरूरी है, हमारे करियर के लिए जरूरी है, रिलेशनशिप के लिए जरूरी है, हमारी पूरी लाइफ के लिए जरूरी है, ये हम सोचते हैं. तो ये सारी चीजें होती है राइटिंग स्किल्स डेवलप करने के लिए. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड नोट टेकिंग फॉर स्टूडेंट्स is absolutely an important aspect which is oftenly ignored. आजकल तो मैं 100% इग्नोर करते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है, मोबाइल है, कंप्यूटर है. आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुडंट यूज दीज टेक्नोलॉजिकल टूल्स, बट यस, डोंट टोटली डिसरिगार्ड राइटिंग. 100% आप टेक्नोलॉजी पे रिलाय नहीं कर सकते. अभी मैं लेक्चर आपको दे रही हूँ, ऑनलाइन लेक्चर दे रही हूँ. सडनली इफ देर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, देर इज नो इंटरनेट कनेक्शन, I will not be able to convey what I want to tell you. तो ये टेक्नोलॉजी के भी डिसएडवांटेजेस हैं, बट जो चीजें हमने लिख के रखी है, जो चीजें ट्रेडिशनल है, वो भी आपको उसी तरीके से फॉलो करनी है. तो व्हाई नॉट ब्लेंड, हैव द ब्लेंड ऑफ टू थिंग्स, मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल. ब्लेंड इट एंड देन गो ahead. Now, 3 scientific links between handwriting your notes and memory. मैं बार बार आपको मेमोरी के बारे में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एज स्टूडेंट आपके लिए मेमोरी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके आगे के लाइफ के लिए. दैट इज व्हाई आई एम फोकसिंग मोर ऑन एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग, writing it, and then retaining the things that you have learned. So these aspects
understanding these aspects of note taking or making is very important, which helps in your improvising your memory skills. The pen is mightier than the keyboard. बहुत ब्यूटीफुल सेंटेंस है इसको. इट्स अ कोट. द पेन इज माइटियर देन अ स्वॉर्ड. स्वॉर्ड का जमाना गया है, अभी बैटल्स नहीं होती है, फील्ड पे बैटल नहीं होती है, अभी पेपर पे बैटल होती है. तो यहाँ पे ये कोट को नए एज में चेंज किया गया है, कह के कि द पेन इज माइटियर देन द कीबोर्ड. व्हाई? आई हैव रीजंस फॉर इट. पेपर नोट टेकर्स ब्रेन्स आर वर्किंग टू डाइजेस्ट, समराइज एंड कैप्चर द हार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन. जैसे मैंने कहा कि जब आप हाथ से नोट्स लिखते हो तब आप उस बेसिकली उस कॉन्सेप्ट को डाइजेस्ट करते हो, समराइज करते हो, कैप्चर करते हो कुछ ज्यादा अच्छी तरीके से. दिस इन टर्न प्रमोट्स अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन मोर देन. अगर आप सबके पास, आप सोच लीजिए मॉडर्नाइजेशन, डिजिटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की बात हम करें तो हर किसी के पास आज लैपटॉप है क्लासरूम में, और आपकी टीचर आपको पढ़ाई रही है और आप नोट्स ले रहे हो, राइट. बट एक्सपेरिमेंट इस पे भी हुआ है, इन पे भी एक्सपेरिमेंट हुआ है, जहाँ पे लोग लैपटॉप पे नोट्स ले रहे हैं और जहाँ पे लोग खुद के हाथ से नोट्स ले रहे हैं. इसका रिजल्ट मैं आपको अभी बताऊंगी थोड़ी देर में. म्यूलर एंड ओपेनहेयर फाउंड दैट participants who took notes on laptop performed worse on conceptual questions than those who took traditional paper notes. इस पे रिसर्च हुआ है, इस पे रिजल्ट आया है, और बड़े बड़े साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ये कहते हैं जब आप लैपटॉप पे नोट्स लेते हो, जब आप मोबाइल पे नोट्स लेते हो, इन दैट केस योर रिटेंशन और यू परफॉर्म worse. Okay, it is a comparison. You perform worse than the people who are handwriting their notes. Second is robust recalls. Handwriting makes a difference. Let me tell you, जब फॉर एग्जाम्पल आप आपके एग्जाम के लिए जाते हो एंड इट इज ऑल अबाउट मेमोरी, जैसे मैंने कहा इंफॉर्मेशन रिटेंशन इज लॉट ऑफ अबाउट मेमोरी. सो व्हेन यू go to your exam room, you start writing your answers, you recall what you have learned. मुझे आज भी याद है, मुझे आज भी याद है जब मैं खुद एग्जाम के लिए जाती थी और मैं एग्जाम्स के लिए अपियर होती थी, मुझे याद आता था कि मैंने उस पेज पे लास्ट वाले पैराग्राफ में इस तरीके से ये टॉपिक लिखा था. सो आई यूज टू गो बैक टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट. मुझे मेरी हैंड राइटिंग याद आती थी कि मैंने, बिकॉज हैंड राइटिंग में काफी वेरिएशन आता है. जब हम बहुत शांति से लिखते हैं तब बहुत अच्छे से लिखते हैं, उसके बाद थोड़ा और खराब होता है, फिर कभी कभी बहुत ही खराब होती है हैंड राइटिंग हमारी. तो हमारी भी हैंड राइटिंग काफी चेंज होती है जब हम कॉपीज में हमारी लिखते हैं. तो वो पर्टिकुलर हैंड राइटिंग हमको याद आती है एग्जाम में कि उस कलर से ऐसा एक डायग्राम ड्रॉ करके मैंने उस जगह पे वो चीज लिखी थी. योर मेमोरी गोज बैक टू दैट पर्टिकुलर part of that page of your copy, your handwriting, and that works miraculously during your exams. Let me tell you, I know I am focusing right now on exams, but I'll tell you how it will help you in your future life also, right? So ये definitely work होता है, आप करके देखिए. The researchers conducted that the typing note takers had worse recall because they weren't actively summarizing and synthesizing key points. देखो, कंप्यूटर जैसे यहाँ पे कहा गया है कि कंप्यूटर नोट्स एक टाइम्स न्यू रोमन में होते हैं, उनके खुद के फॉन्ट्स होते हैं, उनका खुद का A4 साइज होता है, बहुत स्टैंडर्डाइज सेटिंग होता है कंप्यूटर्स का. देखा जाए तो आप उसको काफी क्रिएटिव बना सकते हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि आपको अगर क्रिएटिव ही रहना है तो आप हैंड रिटन नोट्स पे ज्यादा क्रिएटिव रहिए. इट विल सेव योर टाइम बिकॉज टेक्नोलॉजी लर्निंग takes lot of time, and right now I don't suggest you to learn note making on laptop or mobile.
Right now, just focus on handwriting. So what I was trying to tell you is, when you so these computers have got a very standardized font and things. You will not remember those much, पर आप खुद की handwriting बहुत अच्छे से याद रख सकते हो. Next time, to you need to recall information from a lecture or meeting for more than 24 hours, consider handwriting your notes. The material will stick with you longer. I still remember I had a little free time when I was in college, and I have made one paper और उसमें मैंने मेरे goals लिखे थे. I don't have that paper with me right now. A3 साइज का पेपर था और मैंने उसमें काफी कुछ कलर्स से बनाया था, ड्राइंग्स बनाए थे, गोल्स लिखे थे, कुछ वर्ड्स लिखे थे. आई स्टिल रिमेम्बर द इमेज. कुछ कुछ चीजें मुझे अभी भी वो पेपर की याद है. बट let me please tell me honestly in the chat box, can you remember your computer page? Please put it in yes or no. आप आपके ग्रीटिंग्स याद रखते हो, राइट? क्या आप आपके कंप्यूटर के डिजिटल ग्रीटिंग्स याद रख सकते हो? जिस तरीके से आप आपके अगर आप ग्रीटिंग्स खरीदते हो, आई डोंट नो, आवर जनरेशन यूज्ड टू बाय ग्रीटिंग्स एंड एक्चुअली गिव ग्रीटिंग्स टू आवर लव्ड वंस, टीचर्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स. वो ग्रीटिंग्स अभी भी हमारे पास है. हम अभी भी हमें वो ग्रीटिंग्स पे लिखे हुए हैंडराइटिंग याद है. So that is the impact of actual your handwriting and digital world. Let me be very very clear. It sticks longer with you. It sticks longer. या फिर लेटर्स अगर लिखे होंगे, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे लेटर लिखे, मैंने मेरे फ्रेंड्स को लेटर लिखे. ऑफ कोर्स अभी नहीं करते, बट वो लेटर्स अभी भी, वो हैंडराइटिंग अभी भी हमें याद है. अगर आपको करना है तो आप अभी भी वो चीज कर सकते हो. राइटिंग योर वे टू अ हेल्दी ब्रेन. प्लीज प्लीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आजकल के बच्चों को बहुत आसान लगता है कि ब्रेन का इम्पोर्टेंस नहीं पता है. लेट मी रिमाइंड यू, पब्लिश्ड इन ट्रेंड्स इन, एक पेपर पब्लिश हुआ था, उसके बारे में बात कर रही हूँ. ट्रेंड्स इन न्यूरो साइंस एंड एजुकेशन. ये काफी अच्छा टॉपिक है रिसर्च के लिए, अगर किसी को आगे जाके रिसर्च करना है तो. हर स्टडी एंगेज चिल्ड्रन बाय आस्किंग देम टू रिप्रोड्यूस a single letter by typing it, drawing it on plain paper, or tracing it over a dotted line. So there was an experiment done by some lady, and she gave this experiment to uh, in different contexts. First, typing. समझ लीजिए, आप अल्फाबेट की बात कर लीजिए. आप ए टाइप कर रहे हो, आप ए लिख रहे हो, और आप ए ट्रेस कर रहे हो. ये तीन चीजें हैं. ओके, यू कैन डू इट राइट नाउ. मोबाइल है सबके पास. आप ए या फिर कोई एक वर्ड मैं आपको देती हूँ, ठीक है? आप उसको आपके मोबाइल पे दो चीज करते हैं, टाइप करते हैं और ये आपके मोबाइल पे आप टाइप कीजिए और लिखिए भी, ठीक है? आर यू ऑल रेडी फॉर मोबाइल? यू हैव टू टाइप ऑन योर मोबाइल. क्या आप कर सकते हैं? और लेक्चर सुनते सुनते तो फिर मैं आपको बताऊँ. They can write it in the chat box also, ma'am. Yes, that's a good idea. Yes, write it on the chat box. But chat box, I would like to. Why I'm not asking for chat box? There's another reason. So, अगर मोबाइल पे कर सकते हैं तो मोबाइल पे कीजिए. There is auto correction in mobile. So I want. Okay. So auto correction is a very problematic thing for students who actually want to learn. Write committee. कमिटी का स्पेलिंग आप लिखिए इन योर मोबाइल. चैट बॉक्स में मत लिखिए, मोबाइल पे लिखिए. यू कैन टेक्स्ट टू योर टीचर, कोई प्रॉब्लम नहीं है. योर फ्रेंड, किसी को भी आप मोबाइल में कमिटी आप एंड हैंड राइटिंग. सी,
डोंट गलत स्पेलिंग हुआ तो भी चलेगा, बट हाथ से लिखिए और व्हाट्सएप में लिखिए, व्हाट्सएप पे लिखिए. Yes, I'm getting some replies on in the WhatsApp. Yes. The students are replying. Yes. So write on chat. आपके व्हाट्सएप ग्रुप में किसी को आप कमिटी ये सब भेजिए और लिखिए पेपर पे कमिटी. So what will happen is when you write these things on your mobile or laptop, there is an autocorrect correction most of the time, and we are so used to this autocorrect that we tend to uh, not to learn words on our own. वहां पे लिखा है, सिलेक्ट कर लिया, सेंड कर दिया. ये हम कितनी बार करते हैं. हैप्पी बर्थडे टू यू, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी. जब हम हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी भेजते हैं ना, तब हम एनिवर्सरी की स्पेलिंग टाइप नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पे ऑटो करेक्ट आता है. तो हम सिलेक्ट करते हैं या फिर कॉपी पेस्ट करते हैं ऊपर के लोगों का और वी सेंड. बट हम एनिवर्सरी अगर हम हमारे हाथों से लिखेंगे, वी विल सी टू इट दैट एनिवर्सरी की स्पेलिंग सही हो. That is the difference between digital note taking and actual note taking. You can easily copy paste, auto correct, or search from Google, copy paste. You will not type, the word. Even if you are typing, the computer will tell you it is wrong, and so it will correct it automatically. You are not correcting. After all, it is artificial intelligence, my dear students. उसको AI बोलते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो, ओरिजिनल इंटेलिजेंस नहीं है. ओरिजिनल इंटेलिजेंस आपके पास है. आई विल नॉट वेस्ट मच टाइम. मैंने काफी इस बारे में बात की है. अभी आपको शायद पता होना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ओरिजिनल इंटेलिजेंस, रियल इंटेलिजेंस में क्या डिफरेंस है. देयर इज अ रियल लाइनरिटी टू अ कंप्यूटर. Howard said, when you are typing, you are always going straight, whereas with handwriting, you are circling, you are going up and down, you are drawing lines backwards. It's very different. ये बहुत डिफरेंट चीज होती है जब आप हाथ से लिखते हो. इट्स द वे द हैंड राइटिंग फोर्सेस यू टू ऑर्गेनाइज योर थॉट्स दैट लीड्स टू डीपर प्रोसेसिंग. काफी डीपर लेवल तक प्रोसेसिंग होती है जब आप नोट टेकिंग करते हो. हैंड राइटिंग, आई मीन हैंड रिटन नोट्स के बारे में मैं बहुत ज्यादा फोकस करें. It is a lot of deeper thinking is involved in this particular way of taking notes. And very important, let me tell you, both activities work for debilitating disease like Alzheimer and keep your cognitive ability strong. Alzheimer disease पता है आप सबको, memory loss. क्यों होता है memory loss? आप सब उसके शिकार हो सकते हो. आगे रिसर्चर्स आपको बताएंगे कि आप जितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप यूज करोगे, यू विल डेफिनेटली बी प्रोन टू डिजीजेस लाइक अल्जाइमर, मेमोरी लॉस. भगवान ने दी है आपको बुद्धि, ब्रेन दिया है, आप उसका यूटिलाइज खुद कीजिए. खुद के ब्रेन का यूटिलाइज खुद कीजिए. जो कंप्यूटर कर सकता है आप कंप्यूटर से करवाइए, पर जो आप खुद कर सकते हो आप खुद कीजिए. प्लीज प्लीज, दैट इज माय बिग अपील टू ऑल ऑफ यू. नाउ I will not go to the strategies because I'm going to exactly tell you how to do it. I'll skip this and go to, now let us see what are the different note taking methods. Now be ready with your pen, pencil, rubber, color pens. जिन्होंने भी ली है, it's okay. अगर this recording will always be with you, so you can go back and refer to this recording. सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस मेथड से शुरू कर रही हूँ. ये लेक्चर शुरू है और आप नोट्स ले लो. यू आर राइटिंग सेंटेंसेस, सिंपली टेकिंग डाउन सेंटेंसेस. सो इट्स क्विक एंड सिंपल नोट जिसको हम कहते हैं. तो आई गिव यू वन, आई एम गोइंग टू शो यू दोज इमेजेस. ये हैंड राइटिंग बहुत सुंदर है, तो आपको लगेगा मैम में हमारी तो हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है.
मार्क माई वर्ड्स, आप जितना राइटिंग करोगे आपकी हैंडराइटिंग 100% इट इज गोइंग टू इम्प्रूव. सो स्टार्ट फ्रॉम टुडे, डोंट वरी अबाउट योर हैंडराइटिंग, सी द वे इट इज बीन रिटन, जिस तरीके से लिखा है, सिंपल लिखा है, वन बाय वन. मैम ने बोला नाउन्स, तो नाउन्स लिख लिया. उसके नाउन्स के टॉपिक, नाउन्स के सब टॉपिक्स बताए हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, उसके बारे में लिखा. सिंपल नोट. आप ये शॉर्ट में मैं फिर से बता रही हूँ आपको, बिल्कुल फोटो मत खींचिए. द वीडियो विल बी विथ यू, रेफर द वीडियो, मेक योर ओन नोट्स ऑन दिस वीडियो. That will be very important. Don't take notes and don't take photographs, please. So this is a simple way of writing through sentence method. उसको हम थोड़ा सा वेरिएशन लाके उसमें थोड़ा सा चेंज ला सकते हैं. इस तरीके से हम कर सकते हैं. पहले थोड़ा सा टेक्स्ट लिख लिया, फिर उसके सब टेक्स्ट लिख लिए, और फिर और थोड़ा सा चेंज. तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप नोट्स लिखना शुरू करोगे, आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली किस तरीके से ये चीज करनी है. धीरे धीरे वेरिएशन को आपको बढ़ाते रहना है. सेम सेंटेंस के बारे में बता रहे, सेंटेंस नोट टेकिंग. आपने सेंटेंसेस लिखिए, आपके पास एक कलर पेन है, फटाफट फटाफट उसको आप कलर कर सकते हो. ये सब आप एक्चुअल क्लास शुरू है तब आप कर सकते हो. मैं खुद करती हूँ ये चीज. व्हेन आई एम एज अ स्टूडेंट, मैं काफी कोर्सेज करती हूँ. एज अ स्टूडेंट आई एनरोल टू वेरियस कोर्सेज. आई टेक all these things with me, and when the actual lecture is going on, I write it, I color it, I make diagrams at the same time, because I have increased my speed, I've increased my retention power. At the same time I understand the things as well. All of you can do it, all of you. So next step, you can just color it. और एक चीज है, you can use different color pens for only writing. जैसे यहाँ पे दिया है कि क्वेश्चन हेडिंग को आप एक कलर लो, बाकी चीजों को दूसरा कलर लो, फिर से हेडिंग को सेम कलर फॉर. सी, यू विल नेवर फॉरगेट दीज थिंग्स. You will never forget your handwriting, those colors that you have used. It is so personalized. Can I go to the next? Can I go to the next, please, students? Yes, ma'am. फास्ट नहीं हो रहा है तो यस. सो वेरिएशन देखते हैं हम कैसे शुरुआत की. हमने सिंपल एक कलर से शुरुआत की है, सिंपल राइटिंग से शुरुआत की. उसके बाद हमने उसमें थोड़ा वेरिएशन लाया जहाँ पे हमने कुछ सब पॉइंट्स लिखे हैं. उसके बाद हमने सेम सिंपल सेंटेंसेस को कलर में यूज किया है, जस्ट हाईलाइटर से. और उसके बाद हमने 2 कलर पेन्स यूज किए हैं. ये सिंपल सेंटेंस है, फटाफट फटाफट आप लिख सकते हो, 2 कलर में आप लिख सकते हो. एब्सोल्युटली, you only need practice. 100% I guarantee you. Next आप क्या कर सकते हो? This is outlining note taking method. This all you have to write. Okay, outlining note taking method. क्या होता है इससे? Easily creating study questions for review. आपके important questions जो होते हैं एग्जाम के लिए, उसके लिए आप ये चीज इस तरीके से मेथड आप जैसे जैसे यूज करोगे मेथड, आपको समझ में आएगा कि कौन सी मेथड किस चीज के लिए यूज करनी है. इट विल ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस. द मोर यू प्रैक्टिस, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ओ ये टॉपिक है, ये इम्पोर्टेंट, अगर मैम ने बोला है ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, so you will automatically, your brain will start adopting, I have to use outlining method. आपको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपके ब्रेन को, ऑटोमेटिकली वो प्रैक्टिस में आ जाएगा. When to use this method? This method is ideal for use in any lecture environment or whatever the learners try to keep up with the teacher's speed and have no time to grasp every concept. थोड़ा सा स्पीड अप करना है जहाँ पे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वहां पे, तो यहाँ पे आपको थोड़ा आउटलाइनिंग मेथड यूज करनी पड़ेगी. इसकी भी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. जैसे ये एग्जांपल है, यहाँ पे कलर पेन जैसे यूज किए हैं. इट ऑल depends on how you are adapting to the speed and the practice of taking notes. तो इस तरीके से आप कर सकते हो. एबिलिटी 2 सेंटेंसेस हो गए, सजेशन 2 सेंटेंस. तो हमको पता है एबिलिटी, सजेशन, पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट, परमिशन, कंडीशनल ऑफ, कैन एंड सो ऑन.
उसके बीच में 2 सेंटेंसेस है, 2 सेंटेंस, 2 सेंटेंस। तो ये एक ब्राउडर आउटलाइन होगी मॉडल वर्ब्स। उसके बाद क्या कर सकते हो आप, इस तरीके से भी कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि हेडिंग आप 2 कलर से लिखिए, हेडिंग में आप सब हेडिंग्स लिख दीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो अगर क्वेश्चन आता है द कैबिनेट डिपार्टमेंट के बारे में, तो आपके लिए ये नोट इंपॉर्टेंट है। अगर 5 मार्क के लिए कैबिनेट डिपार्टमेंट आता है तो आप इतना लिख सकते हो। अगर 10 मार्क के लिए कैबिनेट डिपार्टमेंट आता है तो आपके जो ये पॉइंट्स हैं, स्टेट, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेजरी, कॉमर्स, एनर्जी, जितने भी पॉइंट्स है, इसमें से आप 5 पॉइंट्स को डिटेल में स्टडी कर सकते हो। क्योंकि आपको याद रहेंगे कि कैबिनेट डिपार्टमेंट में 5 मार्क के लिए इतना लिखना है और 10 मार्क के लिए इसमें से 5 जो भी आपके लिए डिसाइड करोगे उसको एलाबोरेट करना है। तुरंत आपको पता चल जाएगा। तो आउटलाइन हो गई ये। और एक आउटलाइन का इसमें आप थोड़ा सा डायग्राम भी डाल सकते हो। जैसे इट इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, नॉट नेसेसरी कि आपको इसी तरीके से एग्जाम में लिखना है, पर एक आपको पता है कि इस डायग्राम से, आपको छोटे से डायग्राम से आपको पता चल जाएगा कि ओके, विल गोइंग टू, इसके बारे में मुझे कौन कौन सी चीजें याद रखी। वो डायग्राम भी याद आ गया छोटा सा, तो भी आप एक आपको आउटलाइन आ जाएगी कि उसके आई मीन इन डिटेल आपको उसके बारे में क्या लिखना है। तो नॉट नेसेसरी बड़े बड़े सेंटेंसेस लिखो, बट शॉर्ट में आप इसके बारे में लिख सकते हो, अगर आप उसमें छोटा सा एक आधा डायग्राम इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। फिर आप अलग अलग छोटे छोटे डायग्राम्स भी उसमें ऐड कर सकते हो। ऑफ कोर्स आप ये करते करते, टीचर बोल रही है, आप कर सकते हो। आई अश्योर यू दैट। जैसे फ्लैग्स के बारे में बात हो रही है, फटाफट फटाफट आपने फ्लैग्स निकाल दिए, बाद में निकाल लीजिए, उसको अपग्रेड कर दीजिए घर जाके, तो आपके वो फाइनल नोट्स हो जाएंगे। अगर आप यू आर सो गुड एट नोट टेकिंग ड्यूरिंग द लेक्चर, you will not have to make notes. Remember, if you are good in note taking, there is no need for you to make notes. Your notes will already be there. उसको थोड़ा सा आपको बस फिनिशिंग टच देना है, तो आपके नोट टेकिंग विल बिकम नोट मेकिंग। तो आपको अलग से उसको टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। सो यू कैन जस्ट ऐड फ्यू, जैसे मैंने कहा, इसमें आउटलाइन में भी अगर आप ये छोटी छोटी चीजें इसमें ऐड करते हो, तो आपके विजुअल्स आपको याद रहेंगे कि ये डायग्राम था, मुझे डायग्राम याद है पर मुझे कंट्री नहीं याद है। तो इंडिया का था, समझ लीजिए, अब इंडिया आपको पता है, तो 3 कलर्स है, बीच में व्हील है ब्लू कलर का, एंड ऐसा है। ये इंडिया है। मे भी कंट्री नहीं याद रहेगी, पर उन कलर्स से आपको लगेगा कि ये कलर का एसोसिएशन इस कंट्री के साथ है। ये फ्लैग, जैसे ड्रैगन फ्लैग है, तो ये अमेरिका का फ्लैग हम सबको पता है, बहुत ज्यादा फेमस है। तो उस तरीके से रिटेंशन जो होती है ना, मेमोरी, इस तरीके से हमारी काम करती है। नेक्स्ट इज द चार्टिंग नोट टेकिंग मेथड। चार्ट, जो हम चार्ट घर में बना के चिपकाते हैं ना, वो आप क्लासरूम में नोट टेकिंग कैसे कर सकते हो। जैसे मैंने आपको कहा पे अभी भी, इफ योर नोट टेकिंग इज गुड, you prepare that chart during the class when the teacher is telling you, you can just take out that page and paste it on your wardrobe. तो वो आपका चार्ट बन जाएगा, नोट टेकिंग चार्ट। जो आपने क्लास में एक्चुअली चार्ट लिया है, वो आप घर जाके उसको जस्ट निकाल लीजिए, उसको थोड़ा सा आपको फिनिशिंग आप दे सकते हो, यू कैन जस्ट ऐड सम फिनिशिंग टू इट एंड देन पेस्ट इट ऑन योर wardrobe. So when those things you will see, you will remember, you will, and note taking this particular time आपके हैंडराइटिंग में है। बार बार मैं ये कह रही हूँ कि आपके हैंडराइटिंग में वो नोट आप बना रहे हो, तो आप नहीं भूलोगे। दिस मेथड इज क्वाइट यूजफुल whenever there are various subtopics under the main topic, each of which contains many vital points. मैंने कुछ एग्जांपल्स भी, आप देखोगे कि कैसे कि एक ही टॉपिक के साइंस के स्टूडेंट्स हो या फिर आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो, कॉमर्स के हो, आपको पता है कि कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, सब टॉपिक्स
हिस्ट्री में आप देखोगे, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो आप चार्ट बना लो, एंड विजुअल इफेक्ट के लिए बहुत अच्छा है। द पॉइंट्स हियर आर ऑर्गेनाइज लॉजिकली, अनेबलिंग द लर्नर टू रिव्यू देयर वर्क क्विकली। जल्दी से याद कर सकते हो आप, रिव्यू करना है फटाफट, 3 चार्ट देख लिए, सब टॉपिक देखिए, जहाँ पे बहुत सारा डेटा है आपको रिटेन करने के लिए, वहां पे आप ये चीज यूज कर सकते हो। जैसे देखिए, ये एग्जांपल मैंने साइंस का लिया है, एरोबिक एंड एनारोबिक, ऑक्सीजन प्रेजेंट, ऑक्सीजन एब्सेंट, रिलीज मोर एनर्जी, रिलीज लेस एनर्जी, प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, प्रोड्यूसेस दिस। इतना फट से कैटेगराइजेशन कर लिया, चार्ट बना लिया। ऐसा ही अगर आपने चार्ट क्लास में ही बना लिया, ये चार्ट घर में जाके आप चिपका लो। सी दिस ऑल्सो यूजिंग 3 पेन्स, जैसे मैंने कहा 3 कलर के पेन आप यूज करो, फटाफट फटाफट कर सकते हो, स्पीड बढ़ाओ, यू कैन। ये आप क्लास में ही कर सकते हो, घर में जाके चिपका दो, खत्म। उसके बाद जैसे मैंने कहा, डायग्राम्स भी उसमें ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा है स्टेप बाय स्टेप। देखो मैं पीछे जा रही हूँ, पहले मैंने सिर्फ टेक्स्ट लिखा था, उसके बाद मैंने 3 कलर के पेन इसमें यूज किए हैं, इसमें भी आप डिफरेंट कलर के पेन यूज किए, उसके बाद हमने उसमें डायग्राम्स फटाफट ऐड कर लिए हैं। ऐसा भी आप कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप आप अपनी स्पीड को, आपकी क्रिएटिविटी को यू कैन इंक्रीज, यू कैन ऑलवेज इम्प्रूव योर स्किल्स। पोएट्री टूल्स, लाइन ब्रेक्स, रिदम, सिमिली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, इमेजरी, अलिटरेशन, रिपीटेशन आप नहीं भूलोगे जब आप इस तरीके से आपके नोट्स बनाओगे। आप नहीं भूलोगे कि लाइन ब्रेक के लिए आपने इस पर्टिकुलर टूल को सिलेक्ट किया था, रिदम के लिए 100 को सिलेक्ट किया है। टूल्स है ना, आपने टूल्स के डायग्राम्स निकाले हैं और उस पे आपने मेटाफोर को आपने ये टूल दिखाया है, पर्सोनिफिकेशन को ड्रिलिंग मशीन दिखाई है। तो ड्रिलिंग मशीन दिखाई थी मैंने, पर्सोनिफिकेशन को, तो पर्सोनिफिकेशन में क्या आता है, ह्यूमन बीइंग ट्रेट्स टू समथिंग दैट इज नॉट ह्यूमन। कहाँ पे लिखा था मैंने, वो ड्रिलिंग मशीन पे लिखा था। ड्रिलिंग मशीन पे क्या लिखा था, ओ पर्सोनिफिकेशन, ग्रीन कलर में। यस, आपको याद आना ही आना है 100%। नेक्स्ट, मैपिंग। मैपिंग हम सब जानते हैं, डायग्राम्स के लिए हम यूज करते हैं। विजुअलाइजेशन, कनेक्टेड टॉपिक्स एंड आइडियाज, जहाँ पे आपको डेफिनेटली चार्ट से ऊपर हम and काफी connectivity, we need lot of data as well as connectivity to the data. We can use this mapping method. So I'll give you again, this technique is useful when learning about the various relationships between different topics. It is usual or graphic way of organizing your notes and can sufficiently summarize pages of content under one diagram. जैसे मैंने कहा, there is lot of data. In that case, through diagrams, it is very easy to remember, to retain, to understand certain concepts. So these are the few diagrams I'm trying to share. Mughal Empire हम सबको पता है, history kills like anything. Memorizing history is a very difficult task for every one of us. तो जिन्होंने आर्ट्स लिया है उनके लिए पर्टिकुलरली अगर हमको हिस्ट्री याद करनी है, तो देखो कितना अच्छे से यहाँ पे दिया है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि स्नेक जैसा डिजाइन है। तो स्नेक शुरू हुआ बाबर से और धीरे धीरे लेफ्ट राइट करते करते वो बहादुर शाह, आई गेस लास्ट वाला है, यस, बहादुर शाह पे आके रुक गया। तो पहले 4 लाइन में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर है। फिर आता है शायर, शाहजहां, औरंगजेब, मोहम्मद आजम। फिर आते हैं मोहम्मद शाह, अहमद शाह बहादुर, आलमगीर, शाहजहां। और फिर आते हैं शाह आलम, जहां शाह, अकबर एंड बहादुर शाह। जब आप इस चीज को याद करोगे, इस डायग्राम को, तब आपको एग्जाम में कभी भी लाइफ में आपको याद रहेगा कि अरे नहीं, वो क्या है, जहांगीर शाह के लाइन में ना वो फर्रुखिया शाह नाम को कोई था।
वो बाबर के लाइन में नहीं था जो मैंने डायग्राम बनाया था। डायग्राम को भी कैसे आपको याद रखना है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो नहीं नहीं, वो ना वो बहादुर शाह जो है वो लास्ट में था, राइट हैंड साइड में, और शहर शाह जो था वो थर्ड लाइन में था, वो सी के नीचे। कैसे भूलोगे आप, नहीं भूलोगे। उसके बाद साइंस के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत कॉमन है इस तरीके के डायग्राम्स, बट अगर आप उसको और कलर करते हो और इस तरीके से कॉन्सेप्ट को, अगर आप जब क्लास शुरू है तभी आप इस चीज को इस तरीके से, सी ग्लूकोज का फॉन्ट, ग्लूकोज, ग्लाइकोसिस, एटीपी, सिक्टोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ये थोड़े बड़े फॉन्ट में आप ही ने लिखे हैं, दिस इज हैंड रिटन। बड़े फॉन्ट में लिखो, बाकी चीजों को छोटा छोटा लिखो। फिर कर्व साइकिल को थोड़ा सा बड़ा लिखा है, घर जाके उसको थोड़ा सा बोल्ड कर दो आप, क्योंकि वो उसका और सब हेडिंग है। उसके बाद और कुछ कुछ चीजें हैं, और लास्ट में 3G ATP क्या है, वट एवर इट इज, तो वो और बोल्ड में है। तो ये सारी चीजें आपने ही डिफाइन की है। तो मैंने येलो कलर यूज किया था, और इसके बाद ये चीजें थी, एंड ऐसा एरो यहाँ गया था, और कुछ तो था वहां पे, व्हाट वाज इट, यस, यू विल रिमेम्बर, यू विल रिमेम्बर। अगेन आई कम बैक टू हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी काफी हिस्ट्री में भी जैसे हमने कहा मराठा एम्पायर की बात करते हैं, ये पोस्टर है, पर आप इस तरीके से आप खुद बना सकते हो, नॉट नेसेसरी कि आपको वो फोटो वहां चिपकाना ही है। पर अगर जब आप बना रहे हो तो आप कट करके पेस्ट भी कर सकते हो, जस्ट टू रिमेम्बर कि ये शिवाजी महाराज का मराठा एम्पायर था, इस तरीके से। तो you can cut and paste some photographs in your handwritten notes. That also you can do. You can take colored drawing sheets. कलर ड्राइंग शीट पे आप जस्ट लाइट कलर से आप फटाफट फटाफट लिख लो और उसको पेस्ट कर लो। पेस्टिंग भी आप कर सकते हो फोटोग्राफ। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है। जो डिफिकल्ट टॉपिक है ना, वो बहुत डिफिकल्ट है और आपको नहीं याद हो रहा है, तो उसको थोड़ा विजुअल इसमें आप ज्यादा करो, तो विजुअल इसमें ज्यादा अच्छे से हमको याद होता है। इवन दिस डायग्राम, गंगा रिवर सिस्टम, देखो कितना बड़ा है। माय गुडनेस, हाउ वी आर गोइंग टू रिमेम्बर दिस। सी यहाँ पे कैसे लिखा है कि इफ यू जस्ट रीड दिस, सोरो ऑफ, सी नीचे लिखा है सोरो ऑफ बिहार, खुद के कुछ पॉइंट्स डाले हैं इसमें। पर्सनलाइज, कौन बनेगा जर्नलिस्ट, राम बेटा चंबल का। It's so funny. You can have your own tricky secret language for these things. गंगा का घाघरा गंदा हो गया. So you can just see कि how personalized you can have your own note making. आप भी आपके नोट मेकिंग को खुद के उसमें खुद के आइडियाज, खुद के पर्सनलाइज नोट्स, ताकि आपको याद रहे इतने बड़े बड़े टॉपिक्स। तो फनी भी बना सकते हो उसको, इंटरेस्टिंग बना सकते हो। कोई पिक्चर का नाम ही अगर उसके जैसे इनिशियल्स है, कौन सा बोलूं मैं, हम आपके हैं कौन, HH, हम आपके हैं कौन, HHK, ऐसा कुछ होगा तो आप उसको डाल दो। Interesting, you can make it interesting. Notes, remember, you can make these things interesting. The Cornell method. This is the last method I'll be sharing with you. This is a little, but this is a little, what you can say, lengthy. But if you start with sentence and all those methods that I have shared with you, आप कॉर्नल तक भी बहुत अच्छे से आ सकते हो। ओके, अंडरस्टैंडिंग की आइडियाज एंड रिलेशनशिप। अब आपको ये ड्रॉ करना है। वैसे आपके पास ये वीडियो रहेगा तो कोई इश्यू नहीं है, आप अभी सुन लीजिए। ये इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। नोट्स राइट में है, क्यूज है लेफ्ट में,
1/4 में क्यूज है, 3/4 में नोट्स है और नीचे समरी है। तो इस तरीके से इस मेथड में डिवीजन होता है। एंड whenever you find yourself in a lecture or a class whose topic discussion contains many details, अलग अलग तरीके के, ठीक है, यानी जैसे हम समझ लीजिए हम यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो कोई भी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में सॉरी यूरोपियन लिटरेचर पढ़ रहे हैं, तो यूरोपियन लिटरेचर में यूरोपियन हिस्ट्री आ गई, उसके बाद उसका लिटरेचर आ गया, उसके बाद उसका लिटरेचर में डिटेल्स, उसके और राइटर्स कौन है वो आ गए, उसकी पॉलिटिकल सोशल कल्चरल एस्पेक्ट्स आ गए, बहुत सारी चीजें हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं एक साथ, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए और अलग अलग है, यहाँ अलग अलग चीजें इन्वॉल्व हैं। तो ऐसी चीज के लिए ऐसे पर्टिकुलर लर्निंग के लिए आप नोट्स एक तरीके से, फिर नोट्स के सब नोट्स को आप क्यूज में डिवाइड कर सकते हैं और एंड में सारी चीजों की समरी आप नीचे लिख सकते हैं। तो उसके भी एग्जांपल्स मैं आपको दिखा रही हूँ। ब्यूरोक्रेसी का एक एग्जांपल मुझे यहाँ पे मिला है, तो ये देखिए कितना सारा है। फिर लेफ्ट हैंड साइड में इसको एक सेंटेंस मेथड में किया गया है, राइट हैंड साइड में जो हमने पहली बार सीखा है सेंटेंस मेथड, अलग 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 तरीके से लिखा है, फिर कलर किया है, कलर पेन्स भी यूज किए हैं। फिर लेफ्ट हैंड साइड में आप घर जाके उसके क्यूज लिख सकते हैं। आपको क्या लगता है कि घर, अगर नहीं टाइम है आपको, आप सेंटेंस मेथड लिख लीजिए क्लास में, घर जाके आप उसको क्यूज आप लेफ्ट हैंड साइड में जगह छोड़ दीजिए, go back home, write all the cues on the left hand side, and then at the end when you totally understand the concept, actually यहाँ पे नीचे summary part नहीं आया है, but यहाँ पे नीचे summary, once you understand everything, so write down the summary of that particular topic. Summary can be of hardly 5 lines, जैसे यहाँ पे जगह दी है देखो, ठीक है, दैट यू कैन डू। बहुत बड़ी समरी नहीं लिखनी है, नोट्स और क्यूज को साथ लेके आपको जो भी समराइज आप कर सकते हो, एक जस्ट 5 to 6 sentences यू कैन राइट एज समरी। एक बहुत इंटरेस्टिंग मुझे कॉर्नेल मेथड का मिला है, देखिए कितना सुंदर बनाया, पूरा एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लाइट हाउस बाय वर्जीनिया वुल्फ। ये लिटरेचर का, लिटरेचर के नोट्स हैं, काफी लिटरेचर काफी डिटेल में होता है, इट्स अ वेरी लेंदी सब्जेक्ट, तो काफी लिखना पड़ता है, थियोरेटिकल होता है। तो यहाँ पे लिखा है, कॉन्टेक्चुअल इंफॉर्मेशन दी है, एक्सट्रैक्ट लिखा गया है। राइट हैंड साइड पे बहुत अच्छा सा फोटो भी ऐड किया, अगर आपको ड्रॉ करना नहीं आता है आप कट एंड पेस्ट कर लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग बन सकती है चीजें। और आप आपके ऊपर डिपेंड है, आप उसको और कितना इंटरेस्टिंग बनाते हो। तो एक लाइट हाउस का भी वहाँ पे, बिकॉज लाइट हाउस नाम की पोएम है, तो लाइट हाउस का इमेज वहाँ पे यूज किया है। फिर यहाँ पे की पॉइंट्स लिखे हैं ऑन लेफ्ट हैंड साइड, अनरिक्विटेड फीलिंग्स, इंटेलेक्चुअल डिससेटिस्फैक्शन, पब्लिक विद प्राइवेट, एक्सपोज्ड विद हिडन, द मंडेन, डोमेस्टिसिटी, नेचर, फैमिली, की टेक्निक्स कौन सी यूज किए हैं, थीम्स एंड कंसेप्ट बताए हैं, टेक्निक्स बताए, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो आप ये इस पे लॉन्ग आंसर भी कर सकते हो, शॉर्ट आंसर भी कर सकते हो। लॉन्ग आंसर में ये सारा आप लिख सकते हो जो भी राइट हैंड साइड में दिया है, लेंदी नोट। शॉर्ट आंसर अगर आया तो शॉर्ट आंसर में आप की थीम्स एंड कॉन्सेप्ट पे ये सारी चीजें, आपको जब हेडिंग याद है, सॉरी हेडिंग याद है, तो आप 5 मार्क के लिए की थीम्स एंड कॉन्सेप्ट लिख सकते हो, 5 मार्क के लिए की टेक्निक्स पे आप लिख सकते हो। और अगर 10 मार्क्स के लिए आता है, 15 मार्क्स के लिए आता है, तो ये सारा 15 मार्क्स के लिए लिखते हो। आई मीन राइट हैंड साइड के भी नोट्स लिख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड के, और समरी का कुछ पोर्शन आप 15 मार्क्स के लिए लिख सकते हो। तो अगर आपने कॉर्नेल नोट्स किए, जो भी हमने अभी तक देखी उसके कॉम्बिनेशन में, तो आपका लॉन्ग आंसर अगर रेडी हो गया, तो उसमें के आपके शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, फिल इन द ब्लैंक, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। और अगर आपको की कॉन्सेप्ट और की थीम्स और कॉन्सेप्ट पे आपको और वर्क करना है, तो यू कैन गो बैक टू मैपिंग, यू कैन गो बैक टू चार्ट, यू कैन ऑल्सो गो बैक टू सेंटेंसेस, जैसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, यहाँ पे
की टेक्निक्स में, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में आपको लगता है कि ये पॉइंट इसमें से 4 में से ये इंपॉर्टेंट है, तो उसका आप चार्ट बना लो, उसका आप सेंटेंस फॉर्म में और उसको डिटेल में करो, तो आपका हर एक सब्जेक्ट जो है वो कवर हो सकता है अकॉर्डिंग टू, ऑफ कोर्स, व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू यू फॉर योर एग्जाम, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर योर रिटेंशन इन योर एग्जाम. So this was the last method that I wanted to discuss with you. With this, I come to the end of my presentation, and I really like this C.V. Lewis, what he has said. You can make anything by writing. So I will add more to it. You can make your career, your relationship, your health, and your dreams come true by writing. So I definitely would propose you keep writing. Thank you so much. Thank you so much for giving me this opportunity, Pranjali ma'am and Mitra sir. Thank you. Extreme thankfulness. I mean, there is no other word that I have in my mind. I was thinking continuously, had there been such kinds of sessions when we were in college, I think we would have done it wonderfully well. I was looking at all the slides and the effort and the coordination and everything that has gone into making your presentation. That shows the in-depthness, the importance that you're giving all these skills which are there. Yesterday it was dialogue writing, today it is note making, note taking. And I agree completely, because when we were in college, or we were, till now, even now at times, we keep on writing. I mean, all our post graduation classes also, we used to have habit of writing 8 to 10 pages, kind of a practicing session. And unfortunately, the negative side of technology is that we have all cut, copy, paste kind of a system. And as you said, the brain involved in all these processes, that part of the brain is not developed. uh, Sometimes I think we will have to enforce these things. I mean, at a certain point of time, we will have to enforce these things so that all our students do write. I mean, otherwise, the shortcut method, because students coming to us, they would always say, ma'am, notes hai kya? And they would take away the notes, they would Xerox it, I mean, have the photocopies of it, and simply return it to us in a few minutes' time. And I always make it a point to tell my students that just print out लेके घर पे रखो मत, उसका आपको अचार नहीं डालने का है. That's a crude way of talking to the students, but what I want to say is the same thing that you have Ma'am, I stressed want today, to share and in a one very experience wonderful. also. Actually, Yes, when yes, I was please. doing my MA in English literature, first year I had this experience that I borrowed notes from my friend. She used to write her notes, and because I did not get time to study for my MA, I borrowed her notes. And let me tell you, I could only score just to pass, I would say. And then I decided that this is not, I saw her notes. I was so impressed with it that, and she scored quite better than me. Then I said, why not? I should write my own notes. I am not, मैं कोई बुद्धू नहीं हूँ कि मैं खुद के notes नहीं लिख सकती. So why not? I should write my own notes. So in the second year of my MA, I had written my own notes. And let me tell you, I scored 10% more than my first year. In my first year, I scored around 52, and in second year of MA, I directly scored 62%. That was a 10% rise in my percent. And after that, I never stopped making my own notes, and that also helped me in clearing my set exam. Set exam is Exactly. also very difficult, but these note making has really made me realize that it is the Absolutely. staircase to success.
I even now I have the habit of writing down so many things, and specifically when we attend the refresher courses and orientation courses, I think there are pages and pages that we scribble. And when we look at all those things, after some years' time, those memories are also so very good to, you suddenly remember all those things. I don't have that kind of a recollection of any printed notes that I have, or any fondness for the printed notes that maybe in the course of events I have uh, collected over the years. Let me see, some chat is there a question or so? Mm, there are thank you messages over here. Today we did not know that there are so many types of writing. Okay, one of the students, one of the participants is even impressed about the different ways that we have included the writing skill, because this is how we develop. Yes, yes, yes. He or she, Mono Vasnik is there, and he or she is trying to tell us that he will definitely do it. Okay, okay. I'm happy. There are no questions as such, but if there are, then we will call upon our resource person again. And because we have got a half an hour live doubt clearing session also around 2:30 to 3 o'clock. So if they have any issues, I'll get connected with you, ma'am, again. And on behalf My of my pleasure, ma'am. department, let me take this opportunity to thank you. For a formal vote of thanks, I would request one of the students, Shubhangi Suryavanshi. She had also volunteered, so she can go ahead. So, Shubhangi, are you there? Yes, ma'am. Yes, Shubhangi, you can take over. You can propose. Thank you, ma'am. Very good morning to all of you, ladies and gentlemen. Well, I would like to introduce me first. My name is Shubhangi Suryavanshi, and I am pursuing MA first year, second sem, from Binzani City Shubhangi, College. just a second. Can we see you, Shubhangi? That will, ma'am will also feel very nice about it. If you're comfortable, obviously. Don't get conscious. We all are here. Yes, yes, yes. It's okay, Shubhangi. Please. Yes, ma'am. Yes, please go ahead. Good morning, all of you. It gave me an immense place to deliver place to deliver the vote of thanks for this event. And I'm dignities assemble all dignities assembles here. I would like to thanks Miss Shraddha Deshpande ma'am, our resources person, Shraddha Deshpande ma'am, and I would like to thank you. I would like to thank you, ma'am, for explaining the different ways of the notes making and effective ways of notes making. As per you told, I'm also making such an notes by the putting some just like emoji types and funny diagrams were there on the notes. uh, and then I would like to thanks our principal for organizing such a beneficiary course, career oriented course. And and lastly, I would thank to my personal inspiration and in charge of this IQ department, Dr. Pranjali Kane ma'am. And I thank one of all present here. So thank you so much, ma'am. Thank you so much, Shubhangi. And I'm a witness to this. She's a student of mine, and whatever assignments that she submits, she usually does it in the way that, ma'am, you have told us today. But whatever you shared was really fascinating. I mean, the slides themselves are fascinating. So many ideas that you have shared. Colors. If and small sketches also. If we can make use of them, we will never forget, because this generation is very smart in terms of remembering things also. So I am really hopeful that this will go a long way in helping them to remember their studies also. And even in their offices, wherever they will in future, they will join their offices, and they will have to, if they have to make big reports and all, those reports, or maybe the smaller kind of the pin notes that we make, those will also this session will be helpful for them in making that too.
So thank you Exactly. so I much. mean, what you said, right now I focused on exams, but it will always carry forward in their future uh, life also. Right. Absolutely. Absolutely. Thank you so much, ma'am, to be here. Students, you have to go to Thank the you very much. Google Classroom now, and tomorrow we'll meet with another resource person with another topic. Thank you so much. Thank you.